including me and you. Yes. No Recording issues. started, so you can start. Okay, okay. So a very good morning to all of you. I guess today's session is with electronics and EN students. Am I correct? Parul sir? Yes, sir. Yes, The, sir. to- the 100%. today's lot we have is EC and EN, right? Yes, ECNAN. Yes, yes. Okay. So let's start today's lecture. So, students, I guess in the previous lecture we have discussed, I guess Parul sir has discussed these following topics with you, which includes database, then object naming rules, commands, DQL. Then you have executed your first query, and then over that you have applied the constraints. So the topic that you have discussed previously was single table DQL. So today we are going to sum up the last topic of this heading, which is single table DQL, and the name of the topic is formatting result set. Okay. Now, as far as the previous lecture is concerned, so we have seen that we have we have seen the query, and over that query we have selected the columns. Okay, and after the selection of columns, we are getting some sort of result. So I guess we all are aware of okay, what is our query, what is select, and all those sort of things. Parul sir, are we clear on this? Yes, I think any doubts, any doubts, पिछले lecture में कोई भी doubt हो, any doubt in previous lecture you can ask right now with sir. Clear? I want responses from all the students at least so that we can start it accordingly. If you have any kind of issues, then we'll address those issues. Clear है sir? Clear है. Okay. So listen to me carefully. Students, try to have a proper pen and page with you because today's session is going to be very, very important for your MCQs. Majority of questions which we are going to discuss today or the concepts which we are going to discuss is related directly to your InfyTQ exam. Okay, majority of questions will be from today's topic. Okay, so let's start with this formatting result set. So we have seen that in the previous lecture we have applied the select command, and over that select command we have get the result. अब जब आपको एक बार result मिल गया, so that result may also have different sort of problems. What sort of problems? कि result set में भी duplicacy हो सकती है, result set में कोई भी data randomly आ सकता है, या उसके अलावा result set बहुत बड़ा हो सकता है. So these are some problems. So अगर मुझे अपने result set को भी format करना है, so under that we need to discuss some sort of commands, and those commands are distinct, limit, side by side, order by. So we are going to discuss these three: order by, distinct, and limit one by one. Right? So let's start with the distinct clause. So what is written over here? The distinct clause, when applied over a column name, filter out those tuples which have duplicate values in the specified column. Right? So let's see what I'm trying to explain. This is the general syntax of my distinct clause. So what is written here? I mean, see, this keyword distinct is a new addition to this syntax. आपने select पढ़ा है previous lectures में, उन select command के basis पे you are selecting column 1 and you are selecting column number 2. किस table से select कर रहे हो? That you need to give table name, and this is the constraint that the condition must be either in terms of and or in terms of or. I hope ये सब चीजें आपको clear होंगी. The new addition to this syntax is a keyword, and that keyword is distinct. And what we have discussed, this distinct clause when applied over a column name filters out those tuples which have duplicate values in the specified column. Let's take a very simple example. Suppose I am taking a simple table, and in this table we have two columns. Let's suppose the first column is name of the student and second column is, let's suppose, the marks of the student. Okay. Now in this case somebody has written, let's suppose I'm writing here A which secure 40 marks, and there is another one A, he also secures 40 marks. So as of now, what is happening over here? There are two tuples with duplicacy. One is A40, this one, and second tuple is A40. Now this creates a duplicacy in my table. So I don't want to get that kind of duplicate. Somebody told me you have to found distinct results. So how you will get it? That you can get with the help of distinct keyword. So when you apply this syntax over this table, so you will get output as a single row, and that output will be name, marks, followed by A and 40. अगर इसी टेबल में भी कुछ होता है, let's suppose the name is A and we have 50. Now in this case it is a unique combination. This is not falls under the category of duplicacy because name is same but number of, I mean, the marks are different. So the number of tuples that we select will be A,
50. I hope the distinct clause is clear to each and everyone. This clause, when applied over a column name, filters out those tuples which have duplicate values in the specified कॉलम. अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे यहाँ पर A40 और A40 लिखा है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर और द इंटरप्रेटर, वो कौन से टपल को फैच करता है. अगर आप यहाँ पर ये वेरीफाई करना चाहें कि कौन सा टपल हमारी टेबल में है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रेटर, हाउ द इंटरप्रेटर फैचिंग द डुप्लीकेट value. I hope it is clear, Parul sir. Shall we proceed to the next part? Any doubts till now? Yes, clear. Soumya, yes, clear. Clear, sir. I want response from all the 96 students. Clear, sir. Clear. Okay, so let's. Clear, sir. Fine. Okay, no issues. So now next slide will have a question. Now you need to solve that question, and the time frame is again 60 minutes. Sorry, 60 seconds. And here is your question. Read the question carefully and then try to solve it. And I want answers from each and everyone, because we are not in a very. Read the question very carefully. And we have solved the similar type of question many times, and this question contains only one extra keyword, that is distinct. So apply that particular distinct and then give the answer very carefully. तेज हरी होने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो बच्चों और आराम से आंसर करो, ठीक है. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, एंड एज सर सेड वी वांट रिस्पॉन्स फॉर एवरीवन. Okay. So responses are mixed. We are getting responses from A and D. No. A and D. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible. A and D, and somebody is typing C also. Kumudini Tyagi C. Then there are mixed responses. Maximum of them are typing A, and then few are typing among C and D. No. Let's see the answer. Let's see the answer first, and then I'll get back to the explanation. Okay, so somebody, anyone who has written C? Yes, Adesh Kumar. Okay. Pratibha. Okay. Now everyone is writing C, sir. Now they are very intelligent. Let's see. No issues. Okay, let's see the students. As per the logic, the correct answer is C. Let's explain why it is C. So let's see. So in this case, what is happening? There is a table, and the name of the table is student. Okay, and question is, what is the output of the given query? So let's see. सारे लोग ध्यान से सुनना, because next time ऐसा ना हो कि आप लोग फिर से ना solve कर पाएं. So what we are going to do, we are going to select this from student. हमने student table select किया, हाँ जी select कर लिया. Constraint क्या है? Department name is equal to IT and condition is or department name is equal to MCA, followed by and condition, and the marks between 42 and 50. आप सबको between पता है. We have discussed in the last lecture what is between, right? Then again there is a and part, and then name not like a percent. Okay, आप लोगों को like operator भी बता दिया था, what is like and what is not like. I guess सबको clear होगा. So let's execute this query. तो हमें from से पता चलेगा कि student के अंदर आना है. Now we are going to see the first part where department name is equal to IT or department name is equal to MCA. So let's see this. Department name is equal to CS. तो ये वाला तो tuple नहीं होगा, right? Department name is equal to IT और MCA. Yes, exactly. IT है, MC नहीं है, लेकिन IT available है. And क्या बोल रहा है? Marks between 42 and 50. But marks will be out of the range. हमें कौन सी range consider करनी है? Between 42 and 50. Okay, so this will also be not our part. Mechanical नहीं होगा, CS नहीं होगा. Let's come to this. IT होगा, हाँ जी IT है. Let's see. Are marks are in the range? No, marks are also not in the range. Now, then we have MCA. Yes, exactly. We have MCA. Then we have Maria. Marks, sorry, for MCA, marks 42. Yes, marks 42. For John, yes, exactly, we have John. And name not like percent, A percent. That means वो नाम होना चाहिए जो A से start नहीं हो रहा होगा. वो नाम होना चाहिए जो A से start नहीं हो रहा होगा. तो John A से start नहीं हो रहा, नहीं, तो हम 106 वाले टपल को select कर लेंगे. Very good. Then we will consider IT.
कंडीशन सेटिस्फाइड पहली वाली, हाँ जी सेटिस्फाइड। दूसरी क्या है, बिटवीन 42 एंड 50, ये भी सेटिस्फाइड। तीसरा क्या बोला, नेम मस्ट नॉट बी स्टार्टेड विद ए, क्या मरिया ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, सो लेट्स पिक अप द 107। एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू पुट IT, yes, marks are in the range, yes exactly. John is started with A, no, John is also not started with A, so consider this. So we are considering three tuples, 106, 107 and 108. So what is the answer? So what we are picking up, अब हमें क्या लगाना है, इन तीनों के ऊपर हमें डिस्टिंक्ट लगाना है, वी हैव टू फैच डिस्टिंक्ट नेम एंड मार्क्स। सो सी कौन कौन से टपल आएंगे, जॉन, मारिया एंड जॉन, लेट्स सी, जॉन 42, जॉन 42, बट जॉन 42 MCA, John 42 IT. That means John 42 MCA and John 42 IT. These are my separate tuples. There is no duplicacy. So how many we are going to fetch? We are going to fetch three tuples: John 43, Maria 42, and John 42. So that's why answer number C is the correct option. Parul sir, are we clear on this, or we have any doubt? Sir, yeah, there is a doubt, sir. If you see Yeah. the student table, then that marks of Johns are repeated 42, 42, but in option there is 43. So I think there is a mistake. No, it's a typo error in question student table. If you see the answer and if you see the table, sir. Where it? Oh, sorry. It is 43. Yes. Yes. So yes, We are maximum of you were correct. ठीक है. We are selecting name and marks. Yes, exactly. It is 43. तो Yes. मैक्सिमम ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग कुछ ये बोल रहे थे एरर है, तो मैंने आई हैव कम्युनिकेटेड सेम टू देम। सो ठीक है, वो Okay. टाइपो एरर हो गया, कोई इशू नहीं है। Exactly. Okay. So let's come to the next part now. Next we have order by clause. Okay. So this order by clause is basically another type of clause which we are inbuilding in formatting result set. Okay. So what we are going to do, order by is basically applied either on a single column or on multiple columns. So here we are writing column or columns which sorts the result set in ascending, which is by default, or डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट्स मीन सिंपल, आपको जो भी रिजल्ट सेट मिल रहा है उस रिजल्ट सेट को अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, देन यू हैव टू गो विद order by clause. Then you need to go with order by clause. So what is the syntax? Select column 1, column 2 from table name where condition will be in the form of and or, and order by column 1, column 2. The keywords are ASC or DESC. Now let me clarify one thing. अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, if you are not putting any kind of keyword in terms of ASC or DESC, then order by will be by default ascending order. आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. The answer will be automatically comes in the category of ascending order. But the moment you put DESC, the moment explicitly you need to put DESC, in that case your answer will come in the form of descending order. I hope it is clear what is order by clause. Order by clause is nothing but it is filtering the data in the form of ascending order or descending order. By default we have ascending. Explicitly we need to put DESC keyword to make my column in the form of descending order. I hope it is also clear, Parul sir. Any doubts? Any doubt? doubt? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट सर, नो, क्लियर है सर, क्लियर Okay. क्लियर। So let's solve the question again. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंगल कॉलम के बेसिस पे भी लग सकता है और मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे भी लग सकता है। कैसे, कंफ्यूज मत होना। सपोज मैं ऑर्डर बाय कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय आई एम राइटिंग, मैं पूरा क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग नेम एंड आई एम राइटिंग लेट्स सपोज मार्क्स। ओके, आई एम राइटिंग मार्क्स। अब जो मेरा टपल है, जो मेरा टेबल है, वो इस फॉर्म का है। लेट्स सपोज in this we have two columns, one is name, another one is marks. So if I'm writing A and I'm getting 50, if I'm writing A, if I'm writing 40, if I'm writing A, I'm writing 30, or I'm writing B, I'm writing 60, then accordingly it will do the task. Kaise? A 40, A 30, A 40, A 50, B 60. You will get this answer. ठीक है। अब सपोज क्या होगा, अगर हमारे पास मार्क्स वाला कॉलम नहीं है और सिंपल दो ए हैं, सो ऑटोमेटिकली ए विल बी प्रिंटेड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट it can be applicable on a single column or it can be applicable to multiple columns. So अगर यहाँ पर order by column 1, column 2 है, so it is going to take help from all the columns. Okay, so next we are having another question.
and again you have same time frame. Solve this question, please. All of you, Solve this please question. solve this question. Soumya C, the fastest lady on the earth. Very good, very good. So I'm expecting an answer from each one of you. So please read the question very carefully and answer. C. So we are getting response. C. I want all of you to kindly respond now and kindly give your responses. Nimisha Pandey. What about others? Sir, all of them are typing C, sir. Okay, Muzammil, let's see the answer. Angel. Okay, so I think students got the point how we can order by it. So the correct answer is C. I guess there is no need of explanation because if majority of them are writing the option as C. Is still any doubt? Hello? No doubt, sir. Okay. No doubt. Any doubts? Ritik Sharma, Johnny Tuple is not visible to us. Johnny Johnny, Tuple is not visible to us. last Sir, tuple. again. Yes, yes, Huh, yes. it is 43. Yes, exactly. I got it. It is 43. This tuple is not visible? Last tuple? Hello? Yes, sir. So it is 108, Yes, yes. John 43 and IT. Okay. Parul sir, shall we proceed to the next part? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So the next part is beta limit and offset clause. So I guess this clause is not so important, but yes, we can also discuss what is limit and offset. अब आपने result set निकाल लिया, आपको पता चल गया कि आपने अगर duplicacy remove करनी है, then you can go with distinct keyword, and if you want to sum up your result in the form of some order, maybe ascending or descending, you can go with order by. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट एंड ऑफसेट. अब जो आपके पास रिजल्ट सेट आया है, उस रिजल्ट सेट में से आपको कितने नंबर ऑफ रोज फैच करनी है, उस रिजल्ट सेट में से नंबर ऑफ रोज आपको कितनी फैच करनी है, दैट यू कैन आल्सो लिमिट बाय योरसेल्फ बाय पुटिंग दीज टू कीवर्ड्स, लिमिट एंड ऑफसेट. दैट मींस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं ऐसे ही एक बना देता हूं. सपोज इफ आई एम राइटिंग सिंपल column A, and in this we have 25, in this we have 26, and let's suppose I am putting another 27 and I am getting one more 28. Suppose ये कोई एक कॉलम है मेरे पास जिसके पास चार रोज हैं, चार टपल्स हैं, one is 25, another one is 26, 27 and 28. So what limit is doing? Actually limit tells us, let's suppose I am putting limit as 2 and I am putting offset again as 2. So what it is going to do? This offset works similarly to your array. आपको पता है array कहां से start करता है? Starting from 0 to n minus 1. That means offset will be 2 and limit will be 2. हमें कहां से start करना है? That will be explained by offset, और कितने pick करने हैं? That will be understandable by my limit. Okay, limit clause. So what it is going to do? अगर आपने offset 2 decide किया है, तो आप क्या करोगे? इसको डिस्कार्ड कर दोगे, जीरो वाले को, और इसको कर दोगे डिस्कार्ड. क्यों? क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करें, कहां तक? n माइनस वन. एन की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1. दैट मींस 0 एंड 1. सो वी आर डिस्कार्डिंग 25, वी आर डिस्कार्डिंग 26, और हमें कितने फैच करने? वी नीड टू फैच 2 टपल्स. लिमिट कितनी है? 2. सो दैट वी आर गोइंग टू डू 27 एंड 28. सो जो फाइनल आंसर आपका प्रिंट होगा, दैट विल गेट 27 एंड दैट विल गेट 28 एज द आंसर. अब इसमें एक चीज और हो सकती है. सपोज यहां पर मेरे पास ये 28 जो ये वाला टपल है, ये टपल नहीं है. Suppose this is not the tuple in my table, but still I am putting a limit as 2. तो अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वो दो तो है नहीं तो कैसे उठाएगा. डजंट मैटर, अगर दो नहीं है तो जो पहला वाला है वही आपको रिजल्ट सेट में रिटर्न करा देगा. So in this case my answer will be only 27. I hope it is clear what is limit and what is offset. Offset will decide the कितने इंडेक्स आपको छोड़ने हैं, और लिमिट आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ टपल्स आपको पिक करने हैं. हाँ जी. Sir, Soumya said, please repeat. Sir, please repeat.
No issues, no issues. See, Hmm. this is my row. Sorry, this is my simple table which is having a single, let's suppose the name of the column is A1 and it is having 20, it is having 30, it is having 60. We are having three and four entries into this. Okay. Now what I'm going to do, I'm going to find out result. लेकिन मुझे सारे रोज नहीं चाहिए, मुझे सारे टपल्स नहीं चाहिए, मैं कुछ लिमिट सेट करना चाहता हूं. तो वो मैं कैसे सेट करूंगा? आई एम गेटिंग टू कीवर्ड्स, वन इज लिमिट क्लॉज एंड अनदर वन इज ऑफसेट. ऑफसेट डिसाइड करेगा आपको कितने इंडेक्स छोड़ने हैं. Offset will decide how many index you want to remove from your result set and limit will decide कि कितने total आपको रखने हैं छोड़ने के बाद. Are you getting my point? So अब देखो, तो जो ऑफसेट नम सेट है, ये जो ऑफसेट है ये इंडेक्स की तरह काम करता है. दैट मींस एरे की तरह. इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और जाएगा n-1 तक. दैट मींस अगर आपके पास 5 है बेटा टोटल साइज, आपने ऑफसेट 5 लगाया तो ये कहां से कहां तक छोड़ेगा? 0 टू 0 1 2 3 एंड 4. कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5. ठीक है, इस टाइप से. अगर ये 3 होगा तो ये जाएगा 0 1 2. अगर ये 2 होगा तो जाएगा 0 1. अगर 1 होगा तो ये जाएगा सिंपल 0 0 को ये छोड़ देगा. ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो इंडेक्स पोजीशन. और लिमिट है कि कितने आपको फिर कंसीडर करने हैं छोड़ने के बाद. दैट इज एक्चुअल लिमिट. तो सपोज यहां पर मैंने सेट कर दिया 2. तो यही एग्जांपल मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि अगर ऑफसेट मैंने डिसाइड किया है 2 और लिमिट भी सेट कर दी है 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया? कहां से कहां तक जाना है? 0 टू 1. दैट मींस ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे और ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे. और उठाने कितने? लिमिट है 2. टोटल कितने उठाने? टपल्स 2. सो वी आर गेटिंग आवर आउटपुट एज ए 60 एंड 70. कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि सपोज ये 70 वाला टपल ना हो, लेकिन फिर भी हमने लिमिट 2 डिसाइड की हुई है, तो डजंट मैटर, वो कोई एरर रिटर्न नहीं करेगा. वो क्या करेगा? जो भी अवेलेबल टपल उस टाइम पर होगा, दैट विल बी रिटर्न एज योर आंसर. आई होप नाउ इट इज क्लियर. अभी क्लियर Sir? है? यस 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 यस, क्लियर Okay. क्लियर क्लियर. So let's move to the next. So another question for you. Solve it and give me the answer. इसमें And भी while solving this question, please keep in mind 109 Johnny is missing. So kindly include 109 also. No, in student table 109 Johnny 44 MC is missing. So kindly keep that particular row also in your mind. Sir, वो एक row हमारा miss हो रहा है. okay. हाँ. Because options में है ना और उसमें नहीं है हमारे पास. So again, I am repeating, while solving this question, please keep in mind that 109 Johnny 44 MC is there. So now we are getting answer as D. Janvi gave the first answer D. Sakshi D. Richa D. Yashi D. Geeta, Chetan, Harshit Arora D. Dipanshu Dubey D. Reena, Divya, Pratibha, all of them are typing D, sir. Sir, am I audible? Yeah, sir, you are very much audible. So let's see. Yes, the correct answer is D. Very good. Okay. So we are sum upping the formatting result set and this finishes our SQL single table. Okay. Now, Sir, before moving further, I would like, sir, yeah. I would like to take their mobile numbers. So as I can see that there are students from branch EC and EN, and there are two sections, if I'm not wrong. I want two volunteers from each section to kindly type their mobile number, their branch, and their section. Again, I am repeating, I want two volunteers, their mobile number, their branch, and their section. Please type. Please type. Any two volunteers from each branch, each section. Thank you so much, Yashi. Thank you so much. After ECE, A सा कोई और एक बच्चा, ENA, very good, Deepak Singh. Thank you so much. Only two students. So I want one more from ECEA and ENA. Then Richa Pal, then Srishti ECA, then ENB, then ENB, one more student. And ENA, one more student. Do we have ECB over here? क्या हमारे पास ECB भी कोई बच्चा है? हाँ, तो ECB का वेरी गुड, ECB कंप्लीट हो गया. अब EN का बच्चा है एक एक बच्चा. प्लीज आप लोग मैसेज कर दें. वेरी गुड दुर्गेश, थैंक यू सो मच. And the last from ENB, anyone from ENB, anyone from ENB,
The reason behind taking this mobile number is not to give a call to you and disturb you. The reason behind this number is to make you a coordinator of your class, and after that we'll be sharing some few information which you'll be sharing with among your friends. So this is the main reason behind no taking this mobile number, not to disturb you at all. Thank you so much for sharing the numbers. I'm also looking for ENB, one mobile number from ENB. Anyways, sir, हम आगे बढ़ सकते हैं ना? We can proceed further. Okay, so now students, we have discussed the DQL in terms of single table. ठीक है, अभी single table तक कर लिया, ठीक है, easy है, tough है, doesn't matter. लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, that is known as multiple table DQL, and this is going to be very very important from the perspective of your INFI-TQ exam, because so many questions will be asked from multiple table DQL. Okay, now what is multiple table DQL? Let's understand one by one. I hope you all have pen and paper, because this requires pen and paper. So in this, let's see what sort of topics we are going to cover. Under this, we are going to cover data from multiple tables. We are going to cover simple join. Then we will discuss compound join, followed by aliasing, aggregate functions, group aggregate functions. Then we have a next topic, which is further filtering the groups, and followed by flow of execution of query. Okay, so these 7 topics we are going to cover under DQL with multiple tables. Okay, now what is the need of multiple tables? अभी तक आपने देखा है, let's take a simple thing. अभी तक आपने इस टाइप की कमांड्स पढ़ी है. सेलेक्ट कॉलम का नाम सपोज मैंने A दे दिया, फ्रॉम आपने टेबल का नाम दे दिया सपोज A1, और कुछ वेयर कंडीशन है कि जहां पर जो A है अगर वो फोन नंबर को डिनोट कर रहा है तो उसका फोन नंबर लेट्स सपोज एज को डिनोट कर रहा है तो उसका एज 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ग्रेटर देन 40. कुछ इस टाइप का मैंने क्वेरी लिखा है. अब आप ध्यान से देखो मेरी बात, यहां पर मैं एक टेबल से डेटा फैच कर रहा हूं. आई एम फैचिंग द डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल, और वो टेबल क्या है? ओनली A1. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमेशा एक ही टेबल से डेटा फैच करोगे. आपको ये हो सकता है आपके पास मल्टीपल टेबल्स हों, कि आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो 4 टेबल से मिलकर बनी हुई है, या आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो 5 टेबल्स के बेसिस पे आपको मिलेगी. तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन 5 टेबल्स को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड विद योर further information. Okay, so what I'm trying to explain, that it is not mandatory, it is not hard and fast कि you have only one data to pick up from information. You have multiple tables to pick up information from those. So that is why we have this topic, data from multiple tables. आप लोग ECN के स्टूडेंट हो, मैं बता देता हूं. एक हमारे पास DBMS में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन. आप लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ोगे इसके बाद. You can also have normalization after this. मैं normalization आपको normal सा बता देता हूँ कि what do we mean by normalization. देखो basically सबसे बड़ी जो problem है वो है redundancy की. आप सबको पता है कि what do we mean by redundancy. ठीक है, इस problem से हम हमेशा ग्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से हम normalization अप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ी टेबल है, सपोज आई हैव अ टेबल जिसमें thousands of tuples हैं, तो चांसेस है कि रिडंडेंसी बहुत ज्यादा हो, चांसेस है रिडंडेंसी बहुत ज्यादा हो. तो हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में उस बड़ी टेबल को मल्टीपल टेबल्स में तोड़ देते हैं. हम क्या करते हैं, उस बड़ी टेबल को मल्टीपल टेबल्स में तोड़ देते हैं. अब जब मल्टीपल टेबल्स में हमने तोड़ दिया तो इंफॉर्मेशन भी तो हमें फिर मल्टीपल टेबल से फैच करनी पड़ेगी. ऑल्दो जो मल्टीपल टेबल्स को ब्रेक करने के बाद जो एसक्यूएल क्वेरी का स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हाँ जी, आई एग्री विद दिस. जो एसक्यूएल क्वेरीज का जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द आर. Why is it so? Because database have so much of redundancy, and to avoid those redundancy, to remove those redundancy, we have to break that table into multiple tables. अगर multiple tables में हमारी एक सिंगल टेबल ब्रेक हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई वी हैव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट. समझ में आया what is the requirement of data from multiple tables? Parul sir, are we clear on this? Yes, Soumya. What about others? Kindly reply. What about others? Please reply. They all are replying yes, sir. समझ आ रहा है कि हम मल्टीपल टेबल्स की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉर्मलाइजेशन का सिंपल कनेक्शन है मल्टीपल टेबल से. ठीक है, चलो लेट्स सी. तो अभी तक आपने ये क्वेरी पढ़ी है, सबने यही पढ़ा है ना, सिंटेक्स, जनरल स्ट्रक्चर. एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आया. सेलेक्ट कमांड, कॉलम 1 कॉलम 2 किस टेबल से, वो टेबल का नाम देंगे, वेयर कंडीशन देंगे,
ऑर्डर बाय लगाएंगे और लिमिट लगाएंगे। सबके कीवर्ड्स क्लियर हैं? सेलेक्ट क्या करेगा? सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स को या सिंगल कॉलम को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। फ्रॉम क्या करता है? जिस सोर्स से आपको डेटा उठाना है वो टेबल। वेयर कंडीशन, अगर आपको उसमें कुछ कंडीशन पुट करनी है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, दैट विल गो विद वेयर। ऑर्डर बाय आपको बता दिया, दैट मींस अगर आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उस रिजल्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हो कि रिजल्ट असेंडिंग में हो, रिजल्ट डिसेंडिंग में हो, वी कैन गो विद ऑर्डर बाय। और जो फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आए उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने लिमिट तक मुझे जाना है, दैट यू कैन गो विद लिमिट। तो ये तो आपने सारा का सारा पढ़ा जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेरी, जो हमने अभी तक सिंपल पढ़ा है। अभी हम पढ़ रहे हैं डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। यस, वी आर रीडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। तो ये जो फ्रॉम वाला पार्ट है अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर कॉमा की फॉर्म में या बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, उनकी फॉर्म में यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। जैसे यहाँ टेबल नेम की जगह मैंने लिख दिया टेबल नेम 1 कॉमा टेबल नेम कॉमा _2। तो अब यहाँ डेटा कहां से फैच हो रही है? दो पार्ट से डेटा फैच हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? अभी ये क्वेरी क्या कर रही है? ये तो क्वेरी सिंपल एक टेबल से डेटा फैच कर रही है। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टेबल से भी डेटा को हम फैच कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करोगे तो रिजल्ट आने से पहले एक 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 सीक्वेंस होता है, दैट इज नोन एज एसक्यूएल इंटरप्रेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अवेलेबल इन द बुक्स बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू विद दिस। आपने क्या किया, जब मल्टीपल टेबल्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सोर्स कितना है डेटा को फैच करने का? दो जगह से या दो से ज्यादा जगह से। तो हमें क्या करना है? एसक्यूएल इंटरप्रेटर रिजल्ट आने से पहले क्या करता है? एक वर्चुअल टेबल बना देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने दो टेबल लिखी और रिजल्ट आपके सामने आ गया। ऑल्दो आपको नेकेड आई से तो यही विजुलाइज होगा कि दैट दिस इज द फाइनल रिजल्ट, लेकिन उससे पहले बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? एक वर्चुअल टेबल बन रही होगी। वो वर्चुअल टेबल से फिर हम डेटा को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। सो दैट मींस व्हेन मल्टीपल टेबल्स आर स्पेसिफाइड, द एसक्यूएल इंटरप्रेटर क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल by combining the specified tables as per certain rules and picks data from those combined टेबल्स। अभी वो वर्चुअल टेबल क्या है वो आपको मैं बहुत लाइटली एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू विल बी क्लियर कि व्हाट डू वी मीन बाय वर्चुअल टेबल। आई होप यहां तक समझ में आ गया व्हाट इज वर्चुअल टेबल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एसक्यूएल इंटरप्रेटर। पारुल सर, So kindly reply virtual table or SQL. Yes, sir. They are replying yes, yes, yes. how what is the strength right now? So strength is 109, including me and you. Okay, so all are responding or only a chunk of students Maximum are of them responding? are responding. They are very good students. The So maximum of I them are want, responding. okay, I want this drill throughout my lecture because again and again I'm saying this lecture is very, very important. And if you feel any kind of doubt at any particular moment of time, please interrupt me and do raise the questions, because the best practice is to clear the concept is to ask maximum number of questions. Right now, so अभी हमने बात करी कि अब हमें मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करना है। अब मल्टीपल डेटा जब हम फैच करने की बात कर रहे हैं तो हमें टेबल्स को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। हमें टेबल्स को क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन भी करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंस हैं। तो यहां पर हमने ज्वाइंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक तो हम बोल रहे हैं सिंपल ज्वाइन एंड अनदर वन वी आर सेइंग कंपाउंड ज्वाइन। ठीक है, यही दो कैटेगरी हैं जो थ्रू आउट द डेटाबेस या थ्रू आउट द एसक्यूएल आपको बताएंगे कि कितने टाइप्स के ज्वाइन है। तो जो सिंपल वाली बात है, सिंपल ज्वाइन की हम बात करें तो यहां पर मैं बता देता हूं कौन कौन से ज्वाइंस पढ़ने वाले हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्वाइंस। हम क्रॉस ज्वाइन पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट की भी दो कैटेगरीज हैं, लेफ्ट आउटर, लेट्स मेक इट एज आउटर ज्वाइन एंड वी एब्रिविएशन ऐसे दे देते हैं, हम आउटर ज्वाइन बोल देते हैं और इसको हम फर्दर कर देते हैं लेफ्ट आउटर एंड राइट आउटर। ठीक है, देखिए हर एक ज्वाइन कर सिमिलर काइंड का टास्क रहा है। हर एक ज्वाइन दो या दो से ज्यादा टेबल्स को मर्ज ही कर रहा है, ज्वाइन ही कर रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से कर रहा है। तो जो भी हम ज्वाइन पढ़ेंगे, हर एक ज्वाइन के बीच में एक माइन्यूट सा या एक मेजर सा डिफरेंस है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। क्रॉस ज्वाइन भी ज्वाइनिंग करेगा, नेचुरल ज्वाइन भी ज्वाइनिंग करेगा, लेफ्ट आउटर भी ज्वाइनिंग करेगा, राइट आउटर भी ज्वाइनिंग करेगा। उसके बाद हम फुल पढ़ेंगे, फुल और full join पढ़ेंगे। they all are doing similar kind of task but with a different kind of distinction between all of them. Okay, so I hope it is clear what is simple join और compound join में हम इन सब ज्वाइंस का मिक्सचर पढ़ेंगे। जितने भी हमने अभी तक यहाँ पर स्लाइड पे ज्वाइंस लिखे हैं, वी आर गोइंग टू राइट
mixture of all these joins under the heading compound joins. So let's start with simple join first of all. I hope the agenda is clear why we are reading simple join. अभी तक हमने बात करी सिंगल टेबल डेटा से फैच करने की, अभी हम बात करें मल्टीपल डेटा को डेटा को मल्टीपल टेबल से फैच करने के लिए. अब अगर मल्टीपल टेबल से डेटा को फैच करना है तो सबसे पहले उन टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. और ज्वाइन कैसे करेंगे? दीज आर द फॉलोइंग predefined joins. On the basis of that we are going to join it. Let's start one by one. Okay, so देखो यहाँ पर सिंपल सी ज्वाइन की डेफिनेशन ये लिखी है. हाँ जी हाँ जी बताइए. ऋतिक ने बोला सर री एक्सप्लेन सिंपल ज्वाइन एक बार फिर से. ओके, सिंपल ज्वाइन देखो, ज्वाइन की कोई ऐसी डेफिनेशन मैं नहीं बता रहा हूं कि आप. सिंपल ज्वाइन का काम क्या है? ज्वाइन का काम है एक टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन का कोई काम ही नहीं है उसमें. अगर एक से ज्यादा टेबल है या दो से ज्यादा टेबल है या तीन से ज्यादा टेबल है या चार से ज्यादा टेबल है और सिनेरियो इस टाइप का बन रहा है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो चार टेबल्स को मर्ज करने के बाद ही आप निकाल सकते हो, तो यहां पर ज्वाइन का कंसेप्ट आता है. यहां पर क्या आता है? ज्वाइन का कंसेप्ट आता है. सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया? ज्वाइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, सिंपल ज्वाइन और कंपाउंड ज्वाइन. ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है कि सिंपल ज्वाइन कुछ होगा या कंपाउंड ज्वाइन होगा. ये हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या करा? दो कैटेगरीज बना दी, एक सिंपल ज्वाइन की बना दी और एक कंपाउंड ज्वाइन की. दैट मींस अगर आप सिंपल एक एक ज्वाइन यूज कर रहे हो, सपोज आपने लिखा आपके पास एक टेबल है ए और यहां पर आपने कोई ज्वाइन लगाया और एक टेबल है बी, तो दैट मींस यहां पर क्या हो रहा है? दो टेबल्स के बीच में एक सिंगल ज्वाइन लग रहा है, दो टेबल्स के बीच में एक सिंपल ज्वाइन लग रहा है, तो उसको तो मैंने बोल दिया सिंपल ज्वाइन. अगर इसी टेबल पे ये हो, तीन टेबल हो, एक यहां ज्वाइन लग रहा है और एक ज्वाइन यहां लग रहा है, ठीक है, ये कुछ ज्वाइन हो सकता है, ये कुछ ज्वाइन हो सकता है, दैट मींस एक ही क्वेरी के अंदर एक से ज्यादा बार ज्वाइन हो रहे हैं, तो कुछ क्लबिंग हो रही है ज्वाइंस की. तो जो क्लबिंग वाले ज्वाइंस हैं उनको मैंने कंपाउंड ज्वाइन में रख दिया. तो सिंपल है सिंपल ज्वाइन और कंपाउंड ज्वाइन. तो सिंपल ज्वाइन होंगे क्रॉस ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल ज्वाइन. और कंपाउंड ज्वाइन क्या हो सकते हैं? इन सभी का कॉम्बिनेशन. क्या पता क्रॉस ज्वाइन के साथ नेचुरल ज्वाइन यूज हो जाए, लेफ्ट के साथ आउटर हो जाए, इस टाइप से. आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज सिंपल ज्वाइन एंड व्हाट इज कंपाउंड ज्वाइन. क्लियर है सर. हाँ जी, ऋतिक शर्मा क्लियर है सर. ओके ठीक है, वी कैन मूव ओके. फर्दर. लेट्स सी, अब यहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स आएंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनना सारे लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. सबसे पहले देखो ज्वाइन की क्या टेबल होती है, डेफिनेशन क्या होती है. तो ज्वाइन क्लॉज क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल बाय कंबाइनिंग टू टेबल्स. मैंने आपको वर्चुअल टेबल पहले ही बता दिया था. अगर मेरे पास दो टेबल हैं पी और क्यू और अगर मुझे इन दोनों को मर्ज करना है तो मर्जिंग से पहले या रिजल्ट आने से पहले, मर्जिंग से पहले तो गलत होगा बोलना, रिजल्ट आने से पहले और टेबल्स के ज्वाइन होने के बीच में कुछ ना कुछ प्रोसेस इंटरनली तो चल रहा होगा, तभी तो ज्वाइनिंग के बाद हमें एकदम से रिजल्ट मिल रहा है. तो वो उसको क्या बोलेंगे? उस मर्जिंग वाले सेक्शन को क्या बोलेंगे? वर्चुअल टेबल. यही लिखा है, द ज्वाइन क्लॉज क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल बाय कंबाइनिंग टू टेबल्स. दो से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ दो ही हो. यहां पर सिंपल ज्वाइन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं दो टेबल्स कंसीडर करके चल रहा हूं. आई एम कंसीडरिंग simple join, that is I am taking two tables, okay, from which data can be picked and the rule to combine the two tables is specified through the on clause. So देखो यहाँ पर एक नई चीज और हमें पता चली, that is known as on clause. तो यहाँ पर एक होगा join, कौन सा ज्वाइन यूज कर रहे हैं और कंडीशन किससे चलेगी? ऑन के साथ. अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, वेयर होता है और ऑन होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. दोनों सिमिलर काइंड के टास्क कर रहे हैं. वेयर भी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है और बेटा ऑन भी कंडीशन स्पेसिफाई करता है. रीजन सिर्फ इतना है कि जो ऑन क्लॉज होता है इसको हमेशा हम ज्वाइंस के साथ यूज करते हैं. अगर आपको मर्जिंग के बाद कोई कंडीशन लगानी है, भाई मर्जिंग भी तो किसी ना किसी कंडीशन पे लगेगी, तो वो कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है वो आप करोगे ऑन कीवर्ड के थ्रू या ऑन क्लॉज के थ्रू. वेयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. वेयर कब पढ़ा था? जब हम नॉर्मल बिना ज्वाइंस की कंडीशन लगा रहे थे, उस टाइम आप वेयर यूज कर सकते हो. बट वेयर एंड ऑन both are doing similar kind of task, both are used for specifying the condition. I hope it is clear. पारुल सर एक बार नोट ले लेते हैं कि ये क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर. प्लीज बताओ. क्लियर है सर. यस, आप बाकी लोग रिप्लाई करो प्लीज, ऑल ऑफ यू. जो सर ने बताया ज्वाइन और ऑन क्लास कैसे कैसे यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी जगह यही अब यूज होना है आगे जाके. ठीक है, गुड 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 सर. मैक्सिमम ऑफ देम आर रिप्लाइंग यस, क्लियर है सर. ओके, अच्छा ये बताइए कि इनको समझ में भी आ रहा है कि वैसी गुड लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे ये समझना है कि क्या मेरा पढ़ा हुआ समझ. अंशिका ने बोला है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए. ओके, नो इश्यूज. ठीक है, सिंपल एक बात हम बोल रहे हैं कि P
और Q दो टेबल है, इन दो टेबल्स को ज्वाइन करना है, P एंड Q को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जब ज्वाइन होगा तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया, अगर ज्वाइन करके छोड़ दिया तो रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर आपको जरूरत नहीं है किसी कंडीशन की तो आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया, आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, कंडीशन ही लगाने की जरूरत नहीं है तो आपको कंडीशन वाला पार्ट ही नहीं लिखने की जरूरत, दैट मींस देयर इज नो नीड ऑफ ऑन। लेकिन टेबल ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कोई डेटा फिर फर्दर फिल्टर करना है तो आपको क्या करना है, आपको ऑन क्लॉज लगाना पड़ेगा, दैट मींस कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सिंपल मैं कह रहा हूं कि ऑन और वेयर, कंफ्यूज मत होना, दोनों सिमिलर काइंड का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंडीशन। बस फर्क इतना है कि अगर हम ज्वाइंस की बात कर रहे हैं तो ज्वाइंस के साथ कंडीशन के लिए हमेशा ऑन यूज होगा, ज्वाइंस के साथ कंडीशन के लिए ऑन यूज होगा, और जो सिंपल क्वेरी होंगी विदाउट ज्वाइंस वाली जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो उनके लिए कंस्ट्रेंट क्या यूज होगा, दैट विल बी वेयर, एज सिंपल एज दैट। अभी क्लियर हो गया बेटा? पारुल सर क्लियर है अंशिका? अंशिका प्लीज रिप्लाई करो, आपको क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है सर, ओके। अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? मुझे प्लीज फीडबैक भी दे दीजिएगा फीडबैक क्योंकि सर डिमांड कर रहे हैं कि कैसा है फीडबैक, मतलब अभी कोई फास्ट तो नहीं है, चीजें क्लियर है? सर थोड़ा सा फास्ट है एक बच्चे ने बोला, और अभी चल थोड़ा फास्ट, ठीक है, चलो और धीरे धीरे हो जाते हैं हम क्योंकि लिटिल बिट अल्टीमेट गोल फास्ट, आप लोगों को फास्ट समझ थोड़ा है। सा आप स्लो कर ले। ठीक है, क्लियर चलो है? लेट्स सी। ओके, सो सिंपल ज्वाइन समझ आया? द ज्वाइन क्लॉज क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल बाय कंबाइनिंग टू टेबल्स। माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, यूर ऑडिबल। मुझे कहीं कहीं कट रही है, आई डोंट नो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क और योर नेटवर्क, आई डोंट नो। सर आपकी वॉइस वॉइस मुझे ब्रेक ऑडिबल है होती आ बच्चों, रही है बीच में। सर की वॉइस ऑडिबल है सबको? प्लीज रिप्लाई करो, सर की वॉइस ऑडिबल, यस क्लियर है, ऑडिबल है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ऑल राइट। गो अहेड सर प्लीज। ओके, तो लेट्स सी द सिंपल ज्वाइन। तो सिंपल ज्वाइन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रॉस ज्वाइन की। अब क्रॉस ज्वाइन क्या है? ये कुछ नहीं है, सिंपल। अब पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या बेसिकली क्रॉस ज्वाइन। फॉलोइंग इज द जर्नल फॉर्मेट ऑफ द क्रॉस ज्वाइन। अब ये लगता कैसे है, इसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, दैट कीवर्ड इज नोन एज क्रॉस ज्वाइन। ये सब विजिबल होगा ब्लैक वाली स्क्रीन में, इतना पार्ट ब्लैक है, यही एक नया वाला पार्ट है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पर वेयर है, मैंने ऑन नहीं लगा, वो भी मैं बता देता हूँ। अभी फॉलोइंग इज द जर्नल फॉर्मेट ऑफ द क्रॉस ज्वाइन स्टेटमेंट। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2। अब जो सेलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो कहां से आने हैं? दो टेबल से, टेबल 1 और टेबल 2। दैट मींस ये दो कॉलम्स मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए किन्हीं दो टेबल से, तो इन टेबल्स को क्या करना पड़ेगा? मर्ज भी तो करना पड़ेगा ना, ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप कोई भी ज्वाइन यूज कर सकते हो, क्रॉस ज्वाइन यूज कर सकते हो, नेचुरल यूज कर सकते हो, मैंने आपको लेफ्ट आउटर बताया, राउट आउटर बताया, बहुत तरीके के ज्वाइन है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रॉस ज्वाइन की, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी वेयर कंडीशन की, ऑर्डर बाय की और लिमिट की। ये तीन लाइन आप बहुत फैमिलियर हो, क्यों हम यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट वाली लाइन आप फैमिलियर हो, हम क्यों यूज कर रहे हैं, और नई जो लाइन आई है दैट इज फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, क्रॉस ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर द ऑन क्लॉज। क्रॉस ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर द ऑन क्लॉज। यहां पर हम बात कर रहे हैं डज नॉट रिक्वायर, ऐसी कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है कि आप क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन नहीं लगा सकते, आप क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन लगा दिया, आपने क्या करा, क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन लगा दिया, सो दैट विल बी नोन एज माई इनर ज्वाइन, दैट विल बी नोन एज माई इनर ज्वाइन। तो एक ही कैटेगरी भी है, तो डिफरेंस समझना बिल्कुल कि क्रॉस ज्वाइन डज नॉट रिक्वायर द ऑन क्लॉज। ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन क्लॉज नहीं लगा सकते। अगर आपने लिखा क्रॉस ज्वाइन प्लस ऑन, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इनर ज्वाइन की तरह काम करने लगेगा। वो क्या करने लगेगा, इनर ज्वाइन की तरह काम करने लगेगा। वो बात की चीज है, पहले हम क्रॉस ज्वाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इट इज मैंडेटरी टू पुट ऑन क्लॉज विद क्रॉस ज्वाइन, देन योर आंसर विल बी नो, इट इज नॉट मैंडेटरी। यू कैन राइट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ऑन नहीं लगा सकते, आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये देखो ये क्या कर रहा है। द वर्चुअल टेबल created by the cross join is the Cartesian product of each row of both the tables. Simple. अगर आप क्रॉस ज्वाइन की बात करते हो और दो टेबल है P एंड Q, तो ये क्या करेगा, P और Q के बीच में सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा और कुछ नहीं करेगा। इट विल सिंपली डू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ईच रो ऑफ बोथ द टेबल्स, ठीक है।
इसके बाद क्या होगा, दिस ज्वाइन कॉपीज ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। सो क्रॉस ज्वाइन अभी तक हमने पढ़ा, दो टेबल्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस ज्वाइन, तो क्रॉस ज्वाइन की कंडीशन क्या है कि क्रॉस ज्वाइन हमेशा दो टेबल्स के बीच में क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा, ईच रो ऑफ बोथ द टेबल्स। एंड उसके बाद जो वर्चुअल टेबल बनेगी उसमें क्या आएगा, दिस ज्वाइन कॉपीज ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, यहाँ पर सिंपल एक मैंने एनिमेशन बनाया हुआ है, दो टेबल्स है मेरे पास। सारे लोग बहुत ध्यान से देखना, अभी जितने भी लोग पैसिव मोड में हैं जल्दी से एक्टिव मोड में आ जाओ, क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्लाइड is going to be very very important. Okay, so let's see, we have two tables, one is P and another one is Q. हम throughout the joins, जितनी भी टाइप्स की हम joins की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, हम हर जगह दो ही टेबल यूज करेंगे, P और Q, इसलिए फैमिलियर हो जाओ। ठीक है, अब देखो सिंटेक्स, सेलेक्ट स्टार सर ने बताया था आपको, what is the meaning of select star, that we can select all the tuples in one go। अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं select star from A, क्या नाम है, एक मिनट रुको, select स्टार फ्रॉम P, तो P का स्टार का क्या मतलब हो गया, स्टार का मतलब हो गया ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। स्टार का मतलब तो यही होता है ना। अगर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम Q, इसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे टपल्स जो Q टेबल के अंदर हैं दैट विल बी फेच, तो फाइनल आंसर आ जाएगा PQ एज इट इज। ठीक है, तो स्टार आपको पता है। अब बात आती है P क्रॉस ज्वाइन। अब देखो जो जो पोर्शन एग्जीक्यूट होता चला जाएगा उसको मैं ब्लैक करता चला जाऊंगा। ठीक है, यहां पर मैंने बात करी पहले फ्रॉम P क्रॉस ज्वाइन। देखो सब ध्यान से सुन लो, जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, वैसे तो मैं आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी बताऊंगा, अगर आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी पता चल गई कि कौन से सबसे पहले हमें क्वेरी के अंदर कहां जाना है, उसके बाद कहां जाना है, फिर वहां से कहां जाना है, तो आपकी चुटकियों का काम है क्वेरी को सॉल्व करना। लेकिन वो मैं अभी थोड़ा रुक के बताऊंगा, पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ आपको बताना जरूर चाहूंगा कि सबसे पहले हम नजर मारते हैं फ्रॉम पे, जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है सबसे पहले। अब ये मैंने यहाँ रेड कुछ भी नहीं किया, सिंपल मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ये एक आपके पास क्वेरी है, इस क्वेरी को रन करो। एक्चुअली एक मिनट, एक इसमें ना मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है बेटा, यहाँ पर आप लोग इसको माइंड मत करना, यहाँ है p.c इक्वल टू 67, बस इतना कर लेना, ये कंडीशन गलत है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कुछ फॉर्मेटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ, p.c इज इक्वल टू 67। ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम P क्रॉस ज्वाइन, तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, जब भी आपको कोई भी क्वेरी मिलती है आंख मूंद के उस क्वेरी के फ्रॉम पार्ट पे चले जाओ। क्यों, सबसे पहले तो आपको यही देखना है ना कि डेटा आपको लेके कहां से आना है, और लेने वाला पार्ट कहां पर होगा, दैट विल बी फ्रॉम द फ्रॉम। आपको फ्रॉम ही बताएगा ना कि कौन सी टेबल में जाना है, तो सबसे पहले आपको हमेशा नंबर 1 विल गो टू फ्रॉम, P क्रॉस ज्वाइन। अब P क्रॉस ज्वाइन क्या है, it's simply Cartesian product of both the tables, simply Cartesian product of both the tables। that means जो ABCD वाला टपल है इसके अंदर और जो यहाँ पर DEF वाला टपल है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी है डॉट, ये भी ध्यान से सुनना, यहाँ पर हर जगह मैंने डॉट लगाया हुआ है, तो ये डॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेबल्स में। ये डॉट किस लिए लगाया जाता है, सिंपल ध्यान से सुन लो, इस डॉट को लगाने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं और उन मल्टीपल टेबल्स में सेम नाम का कॉलम होता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होंगी एंड उन मल्टीपल टेबल्स में यू हैव सेम नेम ऑफ कॉलम। अब जैसे यहां पर ही देख लो आप लोग, यहाँ पर दो टेबल्स हैं, एक P नाम की टेबल है और एक Q नाम का टेबल है। अब यहाँ पर एक A नाम का कॉलम है, एक B नाम का कॉलम है, एक C नाम का कॉलम है, एक D नाम का कॉलम है। Q वाले टेबल में एक D नाम का कॉलम है, एक E नाम का कॉलम है और एक F नाम का कॉलम है। दैट मीन्स इन दोनों टेबल के बीच में एक ऐसा कॉलम है जिसका नाम सेम है। तो जब आप मर्जिंग करोगे या जब आप इसको एनालाइज करोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, उस कॉलम के नेम के साथ उसका टेबल का नाम अटैच कर देते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं P.B की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि P.B, B कौन सा कॉलम है, B विल बी द कॉलम फ्रॉम P टेबल। व्हाट इज Q.E, E विल बी द कॉलम फ्रॉम Q टेबल। P.C, C will be the column from P table, F will be the column from Q table। तो डॉट का मतलब समझ में आ गया पारुल सर, डॉट का मतलब सबको समझ में आ गया, डॉट का मतलब क्लियर है आप लोगों को, प्लीज रिप्लाई करो बच्चों। डॉट जो सर ने बताया, जो सब, यस सर क्लियर है।
तो कंफ्यूज मत होना कि डॉट क्यों लगाया, डॉट सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए लगाया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उस टाइम जब एक या जब मल्टीपल टेबल्स में सेम नाम की कॉलम हो, तो डॉट लगा के आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा कॉलम कौन से टेबल से रेफर हो रहा है। ठीक है, कंडीशन यहां पर p डॉट सी इक्वल टू 67 है, ये ध्यान देख लेना। अब हम बात करते हैं p क्रॉस ज्वाइन q। ये क्या बोल रहा है, इट्स सिंपली द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको पता है 11 12 80 31, इसकी मल्टीप्लीकेशन q के हर रो के साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या होगा, 11 12 80 31 12 13 एंड 23, फॉलोड बाय 11 12 80 31 31 16 14। सब लोग ध्यान से देखना, 11 12 80 31 15 12 19, ये एक पूरा सेट तैयार हो गया। क्या किया मैंने, इसको मैं ब्लू से भी दिखा देता हूं, इस पूरे टपल की मल्टीप्लिकेशन पहले क्यू के फर्स्ट टपल के साथ, फिर सेकंड टपल के साथ, और फिर थर्ड टपल के साथ। यही तो कहा था मैंने जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा था। अब 41 23 92 15, इस पूरे टपल का मल्टीप्लिकेशन क्यू के हर टपल के साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो 41 23 92 15, देन 12 13 23, 41 23 92 15 31 16 and 14, 41 23 92 15 15 12 19, एक ये बन गया। और सिमिलरली हम तीसरा पैसेज किसके लिए बनाएंगे, इस वाले टपल के लिए। इसको मैं चलो पिंक से दिखा देता हूं। ठीक है, सो दैट मींस 12 16 67 29 की मल्टीप्लीकेशन पहले इस टपल के साथ, फिर इस टपल के साथ, और फिर इस टपल के साथ। तो अब जो वर्चुअल टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी। समझ आ रहा है बेटा, सबको ध्यान से देख लो क्या बना, 11 12 80 31 12 13 23 11 12 80 31 31 16 14 11 12 80 31 15 12 है 19, एंड सिमिलरली फॉर दिस। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। सबसे पहले वर्चुअल टेबल बनेगी, कोई भी ज्वाइन उठा के देख लो, कंडीशन लगाने से पहले यू नीड टू मेंशन कि वर्चुअल टेबल क्या बन रही है। और ये कभी भी वर्चुअल टेबल आपको नेट पे नहीं मिलेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट में। मैंने भी बहुत स्टडी किया है डीबीएमएस, मुझे तो कहीं नहीं मिला कि दो टेबल्स को ज्वाइन करने के बाद वर्चुअल टेबल बताने के बाद एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। वो डायरेक्टली करते हैं, रिजल्ट फैच करके दिखा देते हैं। दैट इज अननेसेसरली बर्डन ऑन अस। तो पहले पता तो चले कि एक्चुअली ज्वाइंस वर्क कैसे कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, यहां तक अगर समझ में आओगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज रेज द क्वेश्चंस। सर आकाश ने एक रिपीट के लिए बोला है, बाकी और किसी को कुछ समझना है या क्लियर हो गया? आकाश अब आपको क्लियर हो गया? क्लियर है सर, बाकी लोगों को क्लियर है? आकाश, आकाश आपको क्लियर हो गया? हो गया पारुल सर? चेतन ने रिपीट के लिए बोला है, आकाश ने रिपीट के लिए बोला है सर। Okay, two students are demanding for repeat. रिपीट, यस सर। Okay, let's see one more time. Cartesian product is nothing, but it is simply multiplication. अब Cartesian product multiplication ही तो है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। मैं पूरा तो इरेज नहीं करूंगा, let's erase this part. Okay. एक एक टपल में बना के दिखा देता हूँ या पूरा वाला दिखा देता हूँ। प्लीज जिसने भी क्वेश्चन पूछा है फोकस अपना स्लाइड पे रखना, क्योंकि बार बार फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। Chetan and Akash, so kindly concentrate now. Sir is repeating, and it's really a big task to repeat these type of questions again and again. Okay. So we are always ready, but yeah. No issues, no issues. देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोल रहा है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेइंग we have 11, we have 12, we have 80, we have 31. Now the multiplication of this tuple with multiplication of with tuple of each tuple of q table. So first of all 11 12 80 31 followed by 12 13 23 11 12 80 31 31 16 14 11 12 80 31 15 12 19. Now this is the first
part we getting in the form of our virtual table. That means इस टपल का बाकी क्यू के हर टपल के साथ मल्टीप्लीकेशन. Similarly for 41 23 92 15 with 12 13 23 41 20 92 15 31 16 14 41 23 92 15 15 12 19 and similarly for 12 16 67. So this will be my final virtual table. अभी समझ आ गया? Yes sir. कुछ नहीं करना, What about हर रो Akash? को हर रो से मल्टीप्लाई करना है. आकाश आ गया समझ में? आकाश ने क्या? वर्चुअल टेबल रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू टेबल्स. यस राइट, यस बिल्कुल yes. सौम्या, बिल्कुल सही बोला आपने. जो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज, अगर पहले टेबल में 3 रो है, दूसरे टेबल में 3 है, तो 3 into 3 दैट इज 9 रो विल बी देयर. नो ओके ओके सर, अब इनके अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है सर? श्योर. हाँ ठीक तो है, ले अब लेते मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं. आप लोग अपना रोल नंबर, सिर्फ रोल नंबर टाइप करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? वन जीरो फाइव B2 सर, एक मिनट. लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और है आपके पास. बच्चों लास्ट 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास. तुषार, ये किसका 2-2 रोल नंबर? चौधरी जी, किसका किसका नंबर डाल रहे हो आप? एक ही रोल नंबर डाल दो बस. लास्ट 5 सेकेंड्स. ठीक है सर. अभिषेक सर, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. Shall we start? Yes sir, we can start. Okay, fine. So ultimately we got this virtual table. अब सबको समझ में आ गया कि virtual table कैसे बन रही है. Virtual table in the case of cross join is nothing but it is a Cartesian product of both the tables, right? Now I'm going to erase all this. Okay, erase नहीं हो रहा. Okay. Now अब ये Cartesian product तो ये बन गया, virtual table आ गया. अब हमें क्या करना है? We need to put the where part. We need to put the where part. ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया था कि on क्लॉज ज्वाइंस के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ज्वाइन के साथ वो ऑप्शनल है. क्रॉस ज्वाइन के साथ क्या है? वो ऑप्शनल है, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन बेसिकली सिंपली टर्म्स में कार्टेशियन कर रहा है. सिंपली क्या कर रहा है? कार्टेशियन कर रहा है. अगर मैं यहाँ पर ऑन क्लॉज लगा देता हूं तो वो भी कंडीशन ही वेरीफाई करेगा, लेकिन इस सुटेबल कॉम्बिनेशन को हम कैसे फैच करते हैं, ये इसका मतलब है इनर ज्वाइन. इसका मतलब है इनर ज्वाइन. या आप ऐसे बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है. अगर आपने क्रॉस ज्वाइन के साथ ऑन लगा दिया तो इट विल बी नोन एज इनर ज्वाइन. काम वो भी सेम यही करेगा जो क्रॉस ज्वाइन और वेयर p डॉट b इक्वल टू q डॉट e कर रहा है, बट वहां पर मैं ऑन लगा दूंगा. लेकिन इस सुटेबल कॉम्बिनेशन को मुझे इनर ज्वाइन ही बोलना पड़ेगा. एम आई क्लियर विद दिस? और इनर ज्वाइन के लिए हमारे पास इनर ज्वाइन नाम का एक कीवर्ड भी होता है, लेकिन मैं उसको यहाँ इसलिए मैनिफाई नहीं कर रहा क्योंकि इनर ज्वाइन कुछ कुछ इंटरप्रेटर्स पे चल जाता है, कुछ कुछ इंटरप्रेटर्स पे नहीं चलता है. तो सुटेबली वी आर फॉलोइंग अ कॉमन कंजेक्चर, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग क्रॉस ज्वाइन. आई होप सबको समझ में आ गया. ठीक है, अब हम वेयर वाले पार्ट की बात करते हैं. तो क्रॉस ज्वाइन तो ये आ गया. अब देखो कंडीशन क्या बोल रही है कि कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये है कि जो बी कॉलम होगा पी टेबल का, जो बी कॉलम होगा पी टेबल का और जो ई कॉलम होगा क्यू टेबल का, वो आपस में इक्वल होने चाहिए.
दूसरी कंडीशन क्या है एंड वाला पार्ट में, कि जो सी कॉलम है पी का वो 67 इक्वल होना चाहिए, और जो एफ कॉलम है क्यू का वो किसके लेस देन होना चाहिए, 20 के। तो ये वाली अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर टपल पे लगानी पड़ेगी। देखते हैं, पहले बात करते हैं पी डॉट बी। यहाँ पर पी डॉट बी है 12 और यहाँ पर है क्यू डॉट ई 13, तो इसको तो कर दूंगा मैं सिंपली डिस्कार्ड। ध्यान से देखना सारे लोग कैसे कंडीशन चल रही है। अब हम करते हैं पी डॉट बी, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर है 16, दैट मीन्स ये भी इक्वल नहीं है, इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, पहली कंडीशन है यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई, हाँ जी। अब एंड वाले पोर्शन को देखते हैं, पी डॉट सी इक्वल टू 67, बट पी डॉट सी कितना है यहाँ पर 80, तो ये वाली कंडीशन भी फैच टपल नहीं होगा। 23 13 इक्वल है, नहीं जी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। 23 16 इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल। 23 12 इक्वल है, नहीं। मैं बार बार ये क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कंडीशन ये है पी डॉट पी बी इक्वल टू क्यू डॉट ई। अभी 16 13 ये इक्वल है, नो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल। लेट्स कम टू दिस वन, 16 इज इक्वल टू 16, पहली वाली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं पी डॉट सी, क्या पी डॉट सी 67 है, हाँ जी पी डॉट सी 67 है। फिर से एंड चेक करते हैं, क्या क्यू डॉट एफ इज लेस देन 20 है, हाँ जी क्यू डॉट एफ इज लेस देन 20। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको ब्लू कर देता हूं, इस वाले टपल को सेलेक्ट कर लेंगे, जो इंटरप्रेटर होगा वो इस वाले टपल को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, 16 we have 16 here and we have 12 here, no we are not going to select this tuple। तो अल्टीमेटली इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक टपल सेलेक्ट करेगा, वो होगा मेरा रिजल्ट सेट। सो जब आप क्रॉस ज्वाइन लगाओगे बच्चे, मतलब जब आपकी ये क्वेरी चलेगी, तो बेसिकली आपको इस क्वेरी चलने के बाद डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है, वो ऐसे काम कर रहा है कि पहले वो उसका कार्टेशियन करेगा, फिर कंडीशन को वेरीफाई करेगा एंड देन इट विल रिजल्ट द आंसर। एम आई क्लियर विद दिस? यहां तक सबको समझ आ गया तो बताओ जल्दी से। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, क्लियर। साक्षी, दीपक, यस दे आर सेइंग क्लियर है। सबको क्लियर क्लियर है है? रिचा? यस, मैक्सिमम ऑफ देम आर राइटिंग सर क्लियर। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन ज्वाइन की। देखो कार्टेशियन ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, बहुत कंफ्यूजन है कि कार्टेशियन ज्वाइन क्या है क्रॉस ज्वाइन क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कार्टेशियन ज्वाइन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्रॉस ज्वाइन। कार्टेशियन ज्वाइन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ क्रॉस ज्वाइन। कैसे, देखो यहां पर, if we replace the cross join clause with a simple comma, it becomes a Cartesian join। basically क्रॉस ज्वाइन भी तो क्या कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकाल रहा है। अगर आपने क्रॉस ज्वाइन के थ्रू करा तब भी कार्टेशियन निकालेगा, और क्रॉस ज्वाइन को अगर आपने कॉमा से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्वाइन। सो एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस ज्वाइन इज सेम एज द क्रॉस ज्वाइन। सिंपल देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 पे लगा रहे हैं। यहां पर प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या लिखा था, यहां पर मैंने लिखा था क्रॉस ज्वाइन, आई हैव रिटन ओवर हियर क्रॉस ज्वाइन। लेकिन अब मैंने क्या किया, क्रॉस ज्वाइन की जगह एक कॉमा लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया। तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर क्या होता है जब हम बात करते हैं नॉर्मल या डे टू डे क्वेरीज की, तो हमें ऐसी मिलती है क्वेरी, सेलेक्ट ए कॉमा बी फ्रॉम A1 टेबल कॉमा B1 टेबल। तो आप ये मत होना कि यहाँ तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कॉमा लगा दिया क्या होगा, कुछ नहीं है। कॉमा लगाने का मतलब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। जैसा प्रोसेस हमने प्रीवियसली रिपीट किया कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के टाइम, वो ही यहां यूज होगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इफ यू आर हैविंग अ कॉमा इट इज क्रॉस ज्वाइन। ये समझ में आ गया तो बताओ जल्दी से। क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कोई दिमाग में कंफ्यूजन कोई है यहाँ तक बेटे? डाउट नहीं कोई होना चाहिए। कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? क्योंकि अगर डाउट है तो फिर आगे आपको आपको प्रॉब्लम है, तो पूरी कोशिश ये करो कोई डाउट नहीं है सर। नो सर, दे आर सेइंग। Okay, so cross join is equivalent to Cartesian join, but there is a difference in their syntax. In cross join, we need to put a keyword cross join, but if we are replacing cross join with a simple comma between tables, then it is also a Cartesian join, or it may known as a Cartesian join, but it is simply Cartesian product of two tables. Okay, let's come to the natural join, and it is a very important join. It is a very important join. पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। देखो कीवर्ड यूज होगा नेचुरल ज्वाइन, कीवर्ड यूज होगा नेचुरल ज्वाइन। वैसे बहुत सिंपल है, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, कॉमा लगा दिया तो कार्टेशियन ज्वाइन बन गया। नेचुरल ज्वाइन लगाया तो नेचुरल ज्वाइन की तरह बिहेव करने लगेगा। अब वो कैसे बिहेव करेगा वो मैं आपको बता देता हूं।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। नेचुरल ज्वाइन क्या बोलता है? पहली चीज, इट डज नॉट रिक्वायर ऑन क्लॉज, क्योंकि इसमें ऑन इनबिल्ट होता है। वो मैं बता देता हूं इसका क्या मतलब है। इट डज नॉट रिक्वायर द ऑन क्लॉज। ठीक है, अब ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल ज्वाइन बेसिकली करता कैसे काम है वो यहां लिखा हुआ है। दिस ज्वाइन लुक्स फॉर अ कॉमन कॉलम टू अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइन। मतलब नेचुरल ज्वाइन, अभी कार्टेशियन ज्वाइन में या कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, हमने तो ये देखा ही नहीं कि कौन सी कंडीशन है, कोई कॉलम इक्वल है कि नहीं। अगर उसने क्रॉस ज्वाइन देख लिया तो वो आंख मूंद के क्या करेगा, दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे देगा। दोनों टेबल्स का क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दे देगा। लेकिन अगर आप नेचुरल ज्वाइन की बात कर रहे हो तो नेचुरल ज्वाइन बेसिकली तभी अप्लाई होगा जब उन दो टेबल्स के बीच में कोई एक कॉलम कॉमन होगा। उन दो टेबल्स के बीच में कोई एक कॉलम कॉमन होगा। अब लिख तो रहे हो आप नेचुरल ज्वाइन, लिख तो रहे हो आप नेचुरल ज्वाइन, लेकिन ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं जो दोनों के बीच में इक्वल होगा। तो रिजल्ट वो फिर भी देगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्रॉस ज्वाइन की कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली टेबल दे देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Natural join will only be applicable if we have a common column. If we have a common column between the tables, तभी applicable है. If you are writing natural join, if you are writing natural join and there is no common column, there is no common column, still it will return the result. And what will be the result? Result will be the Cartesian product of both the tables. Cartesian product of both the tables. I hope I am clear. So this join looks for a common column to apply join. Virtual table is created by selecting only those tuples from table 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. If a common column is not found, this join, it behaves like the cross join, and you all know what is cross join. It is a Cartesian product. ये सेंटेंस सबको समझ में आ गया? ये वाला एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? तो बताओ, फिर आगे बढ़ता हूँ। बेटे बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस यस सर, यस यस यस। नहीं, यस यस लिख भी रहे हैं, ये लिख ही रहे हैं या समझ में एक्चुअली आ रहा है? सर आप कोई डाउट क्लियर पूछ लो ना। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट का नाम बताओ आप मुझे। मुजम्मिल शरीफ। चलो मुजम्मल शरीफ, आप बताओ मुझे बेटा। माइक ऑन करो मुजम्मिल। तीनों अभी तक जितने भी ज्वाइंस मैंने पढ़ाए उनको सम अप करो। यस सर। बताइए जल्दी से, तीनों ज्वाइंस को सम अप करो। कितने ज्वाइंस पढ़े हैं, जल्दी से बताओ। सर क्रॉस जॉइन, नेचुरल जॉइंस एंड कार्टेशियन जॉइन। अच्छा, तीनों में क्या डिफरेंस है? सर तीनों में डिफरेंस ये है, जैसे क्रॉस जॉइन जो यूज करते हैं सर, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की यूज करते हैं। मतलब क्रॉस ज्वाइन हमने देख लिया, अगर क्रॉस ज्वाइन लगा दिया तो एसक्यूएल इंटरप्रेटर क्या करेगा, बिना कुछ देखे दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देगा। समझ आ गया ये? यस सर। क्रॉस ज्वाइन की जगह अगर मैंने कॉमा लगा दिया तो ज्वाइन तो चेंज हो गया, जिसको कार्टेशियन ज्वाइन बोल रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अभी भी सेम आएगा। वो क्या करेगा, दोनों टेबल्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन भी क्या कर रहा है, करेगा तो ज्वाइनिंग ही, लेकिन वो कंडीशन के साथ करेगा। क्या कंडीशन है कि वो तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों टेबल्स के बीच में कोई एक ऐसा कॉलम कॉमन होगा। अगर नेचुरल ज्वाइन लिखा और कोई कॉलम नहीं है कॉमन, तो वो क्या करेगा, वो क्रॉस ज्वाइन की तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। समझ आ गया अब तक? अब समझ आ गया? ओके सर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हु इज स्टिल हैविंग अ डाउट? अर्थ अविचल वशिष्ठ ने बोला सर नेचुरल ज्वाइन एग्जांपल के साथ कर दीजिए। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज नेचुरल ज्वाइन की ये है, ये डिस्टिंग करता है नेचुरल ज्वाइन को। क्या? इट कॉपीज ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स बट कीप्स अ सिंगल कॉपी ऑफ द कॉमन कॉलम। मतलब नेचुरल ज्वाइन में कभी भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो दोनों टेबल का जो कॉमन कॉलम है उसकी एक सिंगल कॉपी फाइनल टेबल में मुझे रख के देगा। समझ आ रही है चीज? इट विल रिटर्न ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ द कॉमन कॉलम। अब जिस बच्चे ने एग्जाम्पल के लिए पूछा था, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी दो टेबल हैं, P है और Q है। वी हैव टू टेबल्स P एंड Q, ABCD DEF। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में, सॉरी टॉप में, लेफ्ट टॉप पे, ये बोल रहा है नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करेगा, लेकिन कैसे करेगा? सबसे पहले उसको कंडीशन ये देखनी है क्या मेरे पास कॉमन कॉलम है या नहीं। तो हाँ जी, अब देखो P और Q दो ऐसी टेबल हैं जिनके पास एक कॉलम A है, एक B है, एक C है, एक E है और एक F है, लेकिन दोनों टेबल्स के बीच में एक ऐसा कॉलम भी है जो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर भी D है और यहाँ पर भी D है, तो नेचुरल ज्वाइन तो लग सकता है, नेचुरल ज्वाइन विल बी एप्लीकेबल। अब वो लगेगा कैसे, एक बार ध्यान से देख लो, सारे लोग जितने भी हैं क्लास के अंदर फिर से एक्टिव मोड में आ जाओ, देखो वो कैसे करेगा। और ये क्वेश्चंस अभी तो आपको इंटीजर की वैल्यूज मैंने लिख के दी हैं 11 12 80, तो बहुत इजीली आप लगा पा रहे हो कि अच्छा इस टपल को इस टपल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज कॉमन है। लेकिन जब आपको रियल लाइफ एग्जांपल मिलेगा, 11 की जगह रमेश हो जाएगा, 12 की जगह अजीत हो जाएगा, या 80 की जगह अभिषेक आ गया, या 31 की जगह पारुल आ गया, तब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। तो उस टाइम पे जब आपको नेचुरल फिगर्स मिलेंगी या नेचुरल वैल्यूज मिलेंगी, एट दैट टाइम देयर इज अ कंफ्यूजन। लेकिन कंफ्यूजन तब होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे तो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, पिछली स्लाइड में एक चीज लिखी हुई है, table for this join looks for a common column to apply join. Virtual table is created by selecting only those tuples from both table 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. जहां जहां पर भी कॉमन कॉलम की वैल्यू इक्वल होगी वहीं से वो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। अब देखो 11 12 80 31, 31 यहां पर है और कहां पर है 31 यहां पर, दैट मींस दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू क्या है 31, तो 11 12 80 31। अगर मैं 12 13 23 लिख रहा हूं तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, ये वाला टपल क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 31 और 12 का कोई मैच ही नहीं है। मैंने क्या बोला है, नेचुरल ज्वाइन तभी वर्क करेगा जब दोनों टेबल्स के बीच में कॉलम भी कॉमन होगा और उस कॉमन की वैल्यूज भी कॉमन होंगी। ठीक है, तो एक टपल तो यहां से निकल के आएगा 11 12 80 31 31 16 14। अब बात करते हैं 11 12 80 31 15, ये वाला भी सिलेक्ट नहीं होगा, नहीं। 41 23 92 15 इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, थर्ड वाले के साथ जाएगा, हाँ जी जाएगा। 15 12 19। अब हम 12 16 67 और 29 की बात करते हैं। अब देखो 29 ना तो इसके साथ जाएगा, 29 इसके साथ भी नहीं जाएगा और 29 इसके साथ भी नहीं जाएगा। तो फाइनल वर्चुअल टेबल क्या बनेगी, दिस विल बी माय फाइनल वर्चुअल टेबल। तो वर्चुअल टेबल में कितने टपल्स आएंगे, बेसिकली कितने टपल्स हैं, मैं इसको पिंक से हाईलाइट कर देता हूं। देयर आर ओनली 2 टपल्स which are going to be part of my natural join. See 11 12 80 31 16 14 41 23 92 15 12 and 19। समझ आ गया नेचुरल ज्वाइन, वर्चुअल टेबल समझ में आ गई तो बताओ जल्दी से। Tell me, जल्दी बताओ भाई। am I clear with this natural join? Yes sir, maximum of them are typing yes. Maximum Clear? them are writing Yes. yes. Okay, so इसका एक बार फाइनल। Yeah. Gitanjali, open your mic. Gitanjali, kindly हाँ open माइक your ओपन mic. करा लीजिए। Gitanjali, kindly open your mic. Yes, sir. Am I audible, Gitanjali? Yes, sir. Gitanjali, if there is no common column in 2 tables, then can we apply natural join? Sir, Or it will- Cartesian product. Listen my question very carefully. If Yes, there sir. is no common column in 2 tables, can we apply natural join? Question first. If yes, then how? Sir, उसका Cartesian product होगा अगर सर आपको आवाज क्लियर आ रही है, मेरे को कट कट के आ रही है, ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है बच्चे की। ब्रेक हो रही है ना। कोई नहीं, अंजलि पाल आपका डाउट क्या है, माइक ऑन करके पूछो। अंजलि पाल आपका क्या डाउट है? कोई नहीं गीतांजलि, थैंक यू सो मच, यू वाज ऑलमोस्ट करेक्ट। हाँ अंजलि अपना माइक ऑन करके पूछो बेटे। सर ये जो वर्चुअल टेबल है ये हमारा फाइनल आउटपुट है? नहीं नहीं नहीं, वर्चुअल टेबल तो अभी आपको सिर्फ नेचुरल ज्वाइन, अभी आउटपुट कहां से आ जाएगा, आउटपुट के लिए तो आपको कंडीशन भी चलानी पड़ेगी ना। अभी पूरी क्वेरी कहां एग्जीक्यूट सर जो ये
सर जब हमें कॉमन कॉलम करते हैं तो सर हम सिर्फ कॉलम का नाम कॉमन होना चाहिए या फिर उसका सारा कंटेंट जितनी भी उसमें रोज आ रही है सब सेम होनी चाहिए? नहीं, सब सेम होने की बात नहीं कह रहे हैं हम। बोले एक तो कॉलम का नाम कॉमन होना चाहिए और उस कॉलम के अंदर वैल्यूज भी कॉमन होनी चाहिए। तभी तो देखो, जब 29 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कोई रो मिल ही नहीं रही है तो मैं 29 को रख ही नहीं रहा हूँ। सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो कॉमन होंगी और दोनों की सिंगल कॉपी जाएगी। बेसिकली होना क्या चाहिए था, 11 12 80 31 31 16 14 41 23 92 15 15 12 19, लेकिन वो क्या करेगा, इन दोनों में से वो क्या करेगा, एक कॉपी को अपने पास रखेगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। सर एक बार फिर भी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो डाउट, जब नहीं होगा तो फिर पूछूंगी दोबारा से। नहीं नहीं, आप पूछो ना, अभी 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 टाइम है आपके पास, मैं रिजल्ट अभी दिखाने जा रहा हूँ। सर जो नेचुरल जॉइन है उसमें जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ कॉमन वाले का आएगा अगर, या फिर कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सबका आएगा, या फिर बस कॉमन का एक आएगा? बेटा नेचुरल ज्वाइन के अंदर वो सारे कॉलम्स आएंगे जो इस टर्म्स में बता देता हूं, पी के वो सारे कॉलम्स और क्यू के वो कॉलम्स जिनके बीच में कोई कॉमन वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो 11 12 80 31, 31 का ये वाला टपल तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा क्योंकि डी कॉलम का नाम तो सेम है लेकिन यहां पर वैल्यू सेम नहीं है। 31 31 कॉलम का नाम सेम है लेकिन वैल्यूज सेम है। तो 11 12 80 और इन दोनों की भी क्या करेगा, वो सिंगल कॉपी कंसीडर करेगा। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर 31। देन 16 14 सिमिलरली फॉर 41 23 92 15, इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या है 15। देखो बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूं, डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, दिस जॉइन looks for a common column to apply join. Virtual table is created by selecting only those tuples from table 1 and table 2 for which the value of the common column is equal. ये लाइन पढ़ी आपने? यस सर। अब आ गया बेटा समझ में? सर फिर जो आपने वो कहा था कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा, तो फिर सर वो कैसे हो सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट तब देगा ना, अब देखो सपोज यहाँ पर डी की कॉमन जगह नहीं होगा। मैं डी की जगह यहाँ एस कर देता हूँ, डी की जगह मैंने यहाँ एस कर दिया। अब कॉमन कॉलम है कोई? नहीं है सर। कैसे वेरीफाई करेगा वो यही तो करेगा ना, P डॉट एस इज इक्वल टू इस टाइप से कुछ लिखेगा Q डॉट एस, लेकिन Q डॉट एस और P डॉट एस जब नॉमेनक्लेचर ही नहीं इक्वल हो रहा तो वैल्यूज को तो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करेगा, वो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकाल के दे देगा, क्योंकि नेचुरल जॉइन में बेसिकली अल्टीमेटली हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वो एक कंडीशन और चेक कर रहा है। क्या कंडीशन चेक कर रहा है, क्या दोनों कॉलम्स के बीच में वैल्यू भी इक्वल है कि नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। यस अभी अभी डाउट क्लियर हो गया? यस सर। Okay, let's see the final answer now. अब यहाँ पर कंडीशन भी है कुछ, नेचुरल ज्वाइन के बाद ये मेरे पास वर्चुअल टेबल आया और कंडीशन क्या है, P डॉट C मस्ट बी ग्रेटर देन 80 एंड Q डॉट F मस्ट बी लेस देन 20। तो मस्ट बी ग्रेटर देन 80, तो ये वाली कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गई, बट Q डॉट F इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। 41 23 92, क्या P डॉट C इज ग्रेटर देन 80? हाँ जी। And Q dot F is less than 20, yes. So the final answer will be a simple single tuple in my result set. अभी जिस स्टूडेंट ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था समझ में आ गया बेटा? बार बार अंजलि, the doubt is clear or not? सर एक बार कोई ऐसा एग्जांपल ले दीजिए जिसमें कि कॉमन ना हो, कॉमन मतलब सेम नहीं हो। सर मेरे को ये डाउट है कि जब कॉमन होगा तो वो ये वाली कॉमन वाली टेबल देगा, और जब कोई कॉमन नहीं होगा तो पार्टीशन प्रोडक्ट देगा। देखो 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 देखो, आप ना इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लो। देखो पी नेचुरल ज्वाइन का जो सिंटेक्स होता है उसमें इनबिल्ट ऑन क्लोज होता है, आपको शायद ये कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब देखना ध्यान से, पी नेचुरल ज्वाइन क्यू, ठीक है, और यहां पर ऑन में लगा होगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं P डॉट डी इज इक्वल टू Q डॉट डी। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। देखो देखो ध्यान से देखो, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं, P नेचुरल ज्वाइन Q ऑन P डॉट D इज इक्वल टू Q डॉट D। अब आप देखो
नेचुरल ज्वाइन के साथ साथ नेचुरल ज्वाइन, बेसिकली नेचुरल ज्वाइन कंडीशन चेक होने से पहले तो क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करेगा ना, ठीक है, और अच्छा साइड ठीक बाय है सर, साइड वो मेरे उसकी को कंडीशन भी चेक करेगा, तब जाके वो वर्चुअल टेबल बनाएगा। एक्चुअली लिख देते हैं हम नेचुरल ज्वाइन, लेकिन बैकएंड पे ये वाला काम हो रहा है। समझ आ गया आप? ओके, यस सर। अभी भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो भाई। देखो नहीं सर, हो गया सर, मेरे ये दोनों कंडीशन एक साथ चल रही हैं। हाँ, दोनों कंडीशन एक साथ चलेंगे। अब देखो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वाली कंडीशन मैंने लिखी नहीं है क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में इनबिल्ट होती है ये कंडीशन, अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लिख रहा, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, अगर मैं इस कंडीशन को नहीं लिख रहा और इस सिनेरियो पे आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को ना लिखें तब भी तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि मेरे पास डी और डी कॉमन है, मुझे तो सिंपल सी नेचुरल ज्वाइन का काम चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर एस होता और यहाँ पर कुछ ऐसे होता जी, तो नेचुरल ज्वाइन लगाने के बावजूद भी कंडीशन एस जी के साथ मैच नहीं हो रही है, लेकिन वो रिजल्ट तो फिर भी देगा, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन भी सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, लेकिन कंडीशन लगाने के बाद फिर वो रिजल्ट को वर्चुअल टेबल को वेरीफाई करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर किसी और स्टूडेंट का डाउट हो तो वो भी पूछ लो, या यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। सर लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, तो अब आप यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग, ठीक है, और डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है सर? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर पहले आप। ठीक है, स्टॉप।